Hello and welcome to Point of View, the show that decodes the region and beyond. I am Wasbir Hussain. China has officially announced startup construction work for the project of the century. Yes, viewers, we are talking about the colossal dam on the Yarlung Changpo River in the lower reaches of the Tibetan Heights that will generate 300 billion kilowatt hours of electricity annually, enough to power over 300 million people. And the project is being built at a staggering 170 billion US dollars. This was announced to the world on Saturday, July 19th by none other than Chinese Premier Li Qiang, who presided over a ceremony in Ningxi city. For the record, the electricity that the project is going to generate, that is 300 billion kilowatt hours annually, is equal to the amount of electricity consumed by the United Kingdom in 2024. While China is doing all of this, we in India are struggling to build a mere 11,000 megawatt Siang Upper Multipurpose project in the Upper Siang district of Arunachal Pradesh on the Siang River. We know, viewers, the power of democracy, where the opinion of the people who are going to be affected matters, unlike in China, where the autocratic communist regime has bulldozed the project, totally ignoring the sentiments of the local Tibetans. The government of India is ready to provide adequate compensation and rehabilitation to the people who are going to be affected by the Siang Upper Multipurpose project in Siang and Upper Siang districts of Arunachal Pradesh. The government is also trying to convince the people that now it is time for everybody to look at the issue as one of national interest and proceed accordingly. The anti-dam lobby has every right to put across their point of view, but somewhere all of us will have to trust our government, the engineers and the technocrats and break the deadlock. To discuss the issue of China building the mega dam and the challenges being faced for the construction of the SUMP, I am joined from New Delhi by Mr. Ozing Tasing, Minister Rural Development and Panchayat Affairs in Arunachal Pradesh. MLA and former Union Minister Ninong Aring is also joining me on the show. Mr. Ninong Aring is the advisor to the Minister for Hydropower Development, Arunachal Government. Dr. Swaran Singh, Professor JNU and one of India's best known China experts, is also on the show. And I am joined also by Advocate Tagori Miji, legal advisor and spokesperson of the Siang Indigenous Farmers Forum from Itanagar. But before I go to my esteemed panel, I am joined live from Itanagar by Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister, Mr. Chaona Main, who along with Chief Minister, Mr. Pema Khandu, reviewed the issue only yesterday. I'll come to you, my panelists. Give me a few minutes. Let me have a quick conversation with Mr. Chaona Main, the Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh. Mr. Chaona Main ji, welcome. कल ही आपने ये इशू को लेकर के रिव्यू मीटिंग किया था जहां चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू थे और स्टेट के चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी भी थे और कंसर्न्ड ऑफिशियल्स भी थे. व्हाट वाज दिस रिव्यू मीटिंग अबाउट? व्हाट आर योर थॉट्स? वासबीर जी, ये जो सवाल उठाया है अभी ये चाइना मेगा डैम को लेके या सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेके ये पहले भी उसका बारे में हम बहुत सा समय में चर्चा कर चुके हैं. हमने अपना जो भावनाएं हैं, अपना जो थॉट है सियांग अपर मल्टीपर्पज को लेके हमने बहुत सा समय, बहुत सा मीटिंग में, बहुत सा मीडिया का साथ भी हमने कह चुका है. तो अभी जो आप सवाल उठाया है हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है. ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है. तो इसलिए मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा. मेरा यही कहना है कि ये जो चाइना ने जो डैम बनाने जा रहा है अभी 60,000 मेगावाट का ये जो कैपेसिटी का ये डैम बनाने जा रहा है और इसका जो है ग्राउंड ब्रेकिंग जो सेरेमनी है ये कल परसों 19 जुलाई को ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुका है, जहाँ की आप जैसे बोला है कि चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग ने यहाँ उपस्थित है. वो भी
हमें ये भी सुनाई दे रहा है कि इसका कुल व्यय होगा जो 1.2 ट्रिलियन चाइनीज युआन, जो कि समवेयर अराउंड 167 बिलियन अमेरिकन डॉलर का व्यय होगा। तो आपने जो बोला है कि इसका जो फार रीचिंग इम्पैक्ट या जो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो थ्रेट परसेप्शन किस तरह का हो सकता है हमारे लिए, मैं तो यही कहूँगा कि थ्रेट परसेप्शन को लेके हमने बहुत सा समय, बहुत सा मीटिंग में हमारा बात को रख दिया है। मीडिया का साथ भी हमने चर्चा कर चुका है। मैंने अपनी बात को भी रखा है, आपका साथ भी मैंने पहले भी चर्चा मैं कर चुका हूँ जी। और अभी मैं यही कहूँगा कि सिर्फ मैं अकेला नहीं है, इसको लेके बहुत सा समय में हमारा जो एनालिस्ट है, हमारा जो स्कॉलर्स है, हमारा जो साइंटिस्ट है, सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, हमारा जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में ये भी सवाल उठाया है कि अगर चाइना ये डैम बनाता है तो उससे उसका खतरा किस तरह का हो सकता है हमारे लिए, किस तरह से डेंजर आ सकता है भारतवर्ष के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए भारत सरकार किस तरह की तैयारी है, इस तरह का चर्चा भी पार्लियामेंट में आ चुका है। तो उसी को लेके अगर थ्रेट परसेप्शन के बारे में मैं यही कहूँगा कि ऑन द इवेंट ऑफ चाइना रिलीजिंग द एक्सेस वाटर थ्रू दिस चाइनीज डैम, तो डाउनस्ट्रीम में जो हमारा सियांग जो वाटर, जो सियांग रिवर बेसिन होगा वो पूरा का पूरा डूब जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है डूब जाएगा, इसका इफेक्ट बांग्लादेश तक आएगा। ऑन द इवेंट ऑफ डाइवर्टिंग द वाटर, अगर पानी डाइवर्ट भी करता है तो हमारा सियांग बेसिन सूख जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो सूख जाएगा, हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आएगा। तो इसलिए इससे किस तरह से इस खतरा को किस तरह से बचना है, ये उपाय हमें अपने आप को ढूंढना है हमारे लिए। ये एक बड़ा विषय है। चाउना जी, आपका मुख्यमंत्री, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने कहा है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अरुणाचल और अरुणाचल की वासियों के लिए, आदि ट्राइब एंड अदर ट्राइब जो इस 12 जो इसमें रहता है अलोंग द बॉर्डर, तो उनका लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है। ये मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए, हमारा लिए वाटर बॉम्ब है, ये वाटर बॉम्ब है। इस खतरा से हमको बचना है, इस उपाय हमको ढूंढना है और उपाय हम ढूंढ चुका है। उस उपाय के लिए हम जो सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, अभी हम लोगों से बातचीत भी कर रहा है, क्योंकि इस तरह का जो सियांग अपर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है 11,000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा और इसका जो है डैम हाइट होगा, डैम हाइट का जो कैपेसिटी होगा वो 9.2 BCM कैपेसिटी का होगा जी। और हमें सुनाई दे रहा है कि चाइना वाला जो डैम बना रहा है वो 5.5 BCM कैपेसिटी का डैम हो रहा है। तो इस तरह का जो मेगा प्रोजेक्ट जब बनाता है तो समय लेता है। हमारा जो लोग अरुणाचल वासी सिंपल है, इनोसेंट है। अच्छा, एक बात बताइए चाउना मैन जी, देखिए आप सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात आपने कहा कि हमारा साथ अभी एडवोकेट टागोरी मिजी जी भी है, जो कि एक थोड़ा सा उनका रिजर्वेशंस भी है, सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम। नाउ हम लोग डेमोक्रेसी है, चाइना ऑटोक्रेसी, हम लोग लोगों का बात भी सुनना पड़ता है। तो आपकी किस तरह का अभी बातचीत हो रहा है? अभी हमको सुनाई दे रहा है कि 2-3 विलेजेस वो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए तैयार हो गया है। क्या बाकी 10 गांव जो है वो भी क्या तैयार हो जाएगा? देखिए, मैंने अभी बोला था कि हमारा जो लोग इनोसेंट है, सिंपल है, उनसे कई महीनों से हम बातचीत कर रहा है इसका बारे में, इसका खतरा के बारे में। लोगों पे हम अवेयरनेस लाने के लिए कोशिश चल रहा है अभी हमारा। तो लोगों में बहुत सा अभी जो लोगों में समझ में आया है कि ये हमारा लिए बहुत खतरा का बात हो सकता है अगर जो चाइना डैम बनाता है। तो बहुत सा गाँव वासी, बहुत सा जो गाँव है हमारा साथ, they are in agreement with the government of Arunachal Pradesh. They have signed MOU. I think till now 2 villages have signed an MOU
of understanding with the government of Arunachal. They are in agreeable for pre-feasibility report, for conducting the pre-feasibility report in the Siang River. In the coming days, I am hopeful that few more villages are coming forward to sign MOU in agreement for the conducting of the PFR in Arunachal Pradesh. I'm very confident that before onset of the winter, we will be able to start the work of PFR. Right. This is the breaking news. Two villages have already signed a MOU with the Arunachal government for the pre-feasibility report, pre-feasibility study. And now the Deputy Chief Minister is saying that 2 more villages are going to sign this MOU with the Arunachal government soon. Now, before I let you go, Chawna Main ji, आपका सरकार का compensation और rehabilitation plan क्या है? थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या? देखिए, हमारा जो आरएनआर जो पॉलिसी है, जो बहुत रोबस्ट पॉलिसी है, बहुत अच्छा पॉलिसी है, हमारा अच्छा पैकेज होगा, जो अफेक्टेड गांव होगा, अफेक्टेड फैमिलीज होगा, अफेक्टेड समझ जो विलेजेस होगा, उसके लिए हम अच्छा पैकेज लाएंगे। हम ये आश्वासन देता है लोगों को, अफेक्टेड फैमिलियों को, अफेक्टेड गांव वालों को कि हमारा सरकार का द्वारा अच्छा पैकेज दे सकेंगे। हम इसके लिए हम अभी तैयारी हो चुका है। हमारा कल का मीटिंग में हम ये भी तय किया कि हमारा जो सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट है, उनको हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ये जो हमारा जो है प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी जो सर्वे है, प्रिलिमिनरी सर्वे जल्दी से जल्दी कंडक्ट करें और जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट हमें सौंपे, ताकि हम अच्छा से अच्छा पैकेज लोगों को दे सके। और हम ये लोगों को सियांग जो बेसिन का जो लोगों को, जो अफेक्टेड फैमिली को यह आश्वासन देता है कि अरुणाचल सरकार, भारत सरकार से हम अच्छा से अच्छा पैकेज दिलवाएगा, ये हमारा गारंटी। तो अब लैंड एक्विजिशन करेंगे और इनको जो अफेक्टेड लोग होंगे, करीबन 12 गांव जो है उनका जो लोग है उनको अफेक्टेड होगा, उनको क्या रिहेबिलिटेट करेंगे, कंपनसेशन होगा, उनका जो फसल है क्रॉप का भी कंपनसेशन होगा, ये आप कह सकते हैं क्या? ये जो आपने जो सवाल उठाया है सब इसमें इंक्लूड है। रोड कम्युनिकेशन होगा दोनों तरफ, सियांग जो नदी है, राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक, दोनों तरफ में जितना सरपास होगा, सरपास का ऊपर जो दोनों तरफ में जो रोड कम्युनिकेशन चाहिए, जो हाईवे चाहिए, वो हाईवे बनाएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज आएगा, एजुकेशन फैसिलिटीज आएगा, मॉडल विलेजेस होगा, जो भी पैकेजेस होगा आरएनआर पॉलिसी में जो भी आता है, हम अच्छा पैकेज लोगों को देगा, ये हमारा आश्वासन। राइट। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू मिस्टर चावना मेन, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि करीबन ये 12 गांव जो है, करीबन कितना लोग, what is the number of people they are likely to be affected by this construction of the SUMP? अभी देखिए, ये जो है, ये जो पीएफआर करने का बाद ही मालूम होगा, डीपीआर जब होगा, हाँ, डीपीआर होने का बाद एग्जैक्ट नंबर कितना होगा, एग्जैक्ट गांव के लगभग कितना होगा, लगभग कितना होगा, लगभग अभी जो पीएफआर होने दीजिए, पीएफआर होने का बाद डीपीआर बनाने में 2-3 साल लग जाएगा। तो इसीलिए आप पीएफआर होने दीजिए, हम पीएफआर बनाने का बाद एग्जैक्ट जो आरएनआर किस तरह से हो सकता है और हमारा कितना एरिया सबमर्ज होगा, वो हमको जानकारी मिलेगा। Okay. Chawna Main ji, thank you so much for speaking to Northeast Live on this show, Point of View tonight. Thank you very much indeed. Let me go to my other panelist now. Can we have everybody on the screen, please? Okay. Now let me, हमारा साथ अभी जुड़े हैं, we have Mr. Ojing Tasing, who is the Minister for Rural Development and Panchayat Affairs in Arunachal Pradesh, who is closely involved in this issue. I have got Mr. Ninong Ering, MLA and former Union Minister, Mr. Professor Swaran Singh, Professor of JNU and a well-known China expert, and Advocate Tagori Miji. He is the legal advisor and spokesperson of the Siang Indigenous Farmers Forum, that has some reservations, a lot of reservations about the construction of the Siang Upper Multipurpose Project. I cannot say that is India's answer to the massive mega dam that China is building, but yes, this is going to be the biggest hydropower project in the whole country in India. That is going to be 1100 megawatt
and it can store 9 billion cubic meters of water, and it is coming up at a cost of 13.2 billion US dollars. Before coming to let me go to New Delhi for a broader perspective, and before discussing the issue in Arunachal Pradesh, let me go to Dr. Swaran Singh, professor at JNU. Dr. Swaran Singh, finally in December 2023, China expressed its intention to build this mega project, which is going to be much bigger than the Three Gorges Dam that China already has. And now they're going to spend 170 billion US dollars, which is almost roughly equivalent to 15 lakh crore Indian rupees, 15 lakh crore. Dr. Swaran Singh, how do you look at this? What are the ramifications? And the stock market in China is already on the rise. The day, that is on 19th, after the Prime Minister Li Qiang announced the start of work. Exactly, Basveer, you mentioned in the opening of your program that Prime Minister Li Qiang has called it the project of the century. And it is supposed to be much, much larger than the world's largest Three Gorges Dam that Chinese already have. This is not all. I think your viewers also must understand that China is world's largest emitter of carbon gases. And it has its own targets to reduce its contribution to CO2 emissions and expand its renewable energy, and primarily using hydropower projects. In Tibet alone, estimates are 194 big and small dams are planned, projected, are already there. About 100 are already there. Another 95 are being constructed and designed. And on this river that we are discussing, which Chinese call Yarlung Tsangpo, we call it Brahmaputra, Bangladesh calls it Jamuna. On this river itself, there are already 28 dams in place, and the largest dam so far was Changmu Dam that was commissioned in 2015. Yes. So it's a whole mushrooming of dams all over this plateau with steep valleys and big rivers. And China has a policy that they call drifting electricity from west to east, because they need enormous amounts of electricity. And therefore, I think this is the largest dam, but it is located in a region which has so many other dams. And the problem that India realized was 25 years back. You will remember when we had very severe floods in Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh. Right. That led to opening of negotiations with China, and we signed an agreement, an MOU with them, that during monsoon period, Chinese will supply us hydrological data. That agreement is renewed several times, but remember, June 2023, that agreement expired and has not been renewed. Even otherwise, Chinese in difficult situations of tension would not share the data, saying there are technical problems with the monitoring stations and so on. So what we are saying here is that, yes, China needs its requirement to expand hydropower power generation, but the fear that this can be potentially weaponized, and that second, it can also, without any intentions, impact major biodiversity issues, major ecological issues, the fragile Himalayan environment. Right. That, I think, is multiple concerns that Tibetans have, and BBC says they were protesting and they were arrested and beaten up. India has protested, Bangladesh has protested, and of course, a whole lot of other people around the world who are worried about fragile Himalayas. So even if the water is not weaponized by Chinese, there are serious concerns even without that. And I think India has been talking to Chinese on this. Yeah. But Chinese are obviously insistent on mega dams, where the world is today increasingly talking about smaller dams and mid-sized dams. And not mega dams. We will go into details, Dr. Swaran Singh. We have the government spokesperson, the minister himself, as well as Mr. Ninong Ering, who has been constantly dealing with this issue. But let us get another point of view before asking the minister to respond. Let me go to Advocate Tagore Mizi. Okay, Advocate Tagore Mizi, I still don't have the connection with him. Let me go to Mr. Ozing Tasing. Tasing ji, अभी देखा जा रहा है कि चाइना ने
फाइनली काम शुरू कर दिया है. नाउ आपका मुख्यमंत्री ने कहा दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. नाउ डू यू थिंक द पीपल, जो लोग हैं, जो लोकल पीपल है, उनको भी ये इशू जो है, एंटी डैम लॉबी जो है या तो लोकल पीपल जो है, इनको भी एक नेशनल इंटरेस्ट का इशू के जैसे देखना चाहिए? इट इज ए इशू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इजंट इट? सबसे पहले तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का वर्कर होने का नाते हैं, जो एक राष्ट्रवादी दल है, मेरा ये सबसे पहले ये रहेगा कि राष्ट्र प्रथम. तो नेशनल इंटरेस्ट हमेशा उसको देखा गया है पहले, और मैं गांव-गांव में जाके भी यही कहता है कि हमको पहले अपना से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट को देखना है. और ये जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एक जो वाटर ट्रीट है हम लोगों को, उसका ऊपर हम लोगों को मिल के काम करना चाहिए राष्ट्र हित में. तो ये मेरा कहना है. और गांव-गांव जाके अभी इसको ये एक अवेयरनेस गांव में लाया जा रहा है, और ये सिर्फ नहीं कर रहा है, इवन ऑफिसर्स, पंचायत लेवल का लीडर्स, सबों को मैंने ये मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का उसको मैं निर्देश दे चुका हूँ कि, और ये अभी बॉटम लेवल में ये काम सब चल रहा है. और सबको अभी ये समझ में आ रहा है कि चाइना जब कमेंट्स कर दिया कि यह डैम बनना है, अब बनना शुरू हो गया, तब से लेके अभी लोग भी थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत सी ज़्यादा सीरियस है. और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि और क्या क्या हमारा तरफ से और अरुणाचल सरकार के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के नेतृत्व में काम बॉटम लेवल पे लोगों को कैसे मोबिलाइज करें, उसके ऊपर और ज़्यादा तेज़ से काम चलेगा जी. और अभी तक में जैसे आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने बोला, छोनामेन साहब ने, कि अभी तक कुछ गांव एमओए साइन कर चुका है, जैसे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट विलेज हु इज बीइंग गॉट इफेक्टेड बाय दिस प्रोजेक्ट, अरीगा बस्ती. अरीगा गांव जो 405 घर है, जिस गांव में उनका 329 गांव ने 29 लोगों ने साइन कर दिया. 329 हाउस होल्ड ने साइन कर दिया कि PFR होना है. तो उसमें तो और भी हम काम कर रहे हैं बॉटम लेवल पे कि और भी गांव आए, डिस्कस करें, नेगोशिएट करें और MOA साइन करें PFR के लिए. Absolutely. I'll have to go for a break, but very quickly I'll bring. Do I have the line to Advocate Tagore Mizi? ओके, हमारे साथ एडवोकेट टागोरी मिजी जुड़े हुए हैं अभी. ही इज द लीगल एडवाइजर एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ द सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम. टागोरी मिजी जी, हाउ इज व्हाट इज आपका स्टैंड अभी क्या है? इतना दिन हम लोग बोल रहे थे कि चाइना बनाएगा, लेकिन अभी हाल ही में चाइना ने काम शुरू कर दिया है. तो उनका दे हैव सेट अ डेडलाइन 2030 तक. ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है 2030 तक शुरू हो जाएगा. Tagore Miji ji, so you still can't hear me? Can you hear me? आपने से काट दिया, सुनाई देते नहीं है. Okay, I think now point is, Mr. Ninong Ering ji, so now China has started work. They have set a deadline of 2030. So now Deputy CM ने कहा कि PFR प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट होने में 2-3 साल लग जाएंगे. तो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट होने में 2-3 साल लग जाएंगे. ये 2-3 साल लग जाएंगे प्रोवाइडेड बाकी जो 10 गांव है उन्होंने इसका कंसेंट अगर दे देगा तभी लगेगा 2-3 साल. अगर नहीं दिया तो और भी टाइम लग सकता है. जरूर लगेगा. नमस्कार दीदी. सबसे पहले तो हमारे जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो है, हमारे ऊर्जा मंत्री भी है और हमारे पन बिजली का भी मंत्री है, तो उनका जो जिस प्रकार से उन्होंने आपको जवाब दिया, और हमारे अजीता सिंह जी जो वहाँ के स्थानीय विधायक भी है और हमारा वहाँ का मंत्री साहब भी है और हमारा स्पोक्स पर्सन भी है, प्रवक्ता है. तो जिस प्रकार से हम सोचे थे कि हम टागोरी मिजी जो हमारे छोटे भाई हैं, ये जो सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम के एडवाइजर भी है, तो उनसे हम सुनना चाहते थे. लेकिन फिर भी जिस प्रकार से चीन ने ऑलरेडी उनका शुरुआत कर दिया काम, और कहते हैं कि 2030 तक उनका ये डैम बनने वाला है, क्या कंप्लीशन होगा. तो
तो चीन का उनका कोई समस्या नहीं, उनका राजनीति कोई इशू नहीं, उनका डेमोक्रेटिक कुछ इशू नहीं है, वो तो पूरा दबाव में डालते हैं। अब तो जो उनके जो सिस्टम ऑफ वर्किंग आप जानते हैं, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिस प्रकार से वो दबाव डालते हैं, तो जबरदस्ती जबरन करके अभी जो जिस प्रकार से मैं अभी नहीं 15 साल से पहले मैं जब मैं सांसद में था, इसको मैं कई बार उठाया हूँ। तो अभी जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ, तो पहले से मैं बोल रहा हूँ कि जब ये डैम बनेगी, उनको डैम को बनाते हैं ऑलरेडी टनल्स बना चुके हैं, हम लोग नहीं जानते, टनल्स बना चुके हैं, एंड दैट रिवर विल बी डाइवर्टेड टू द जिंजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना वेयर इज अ डेजर्ट। वो हम लोग देखेंगे, that we'll have to wait and watch. Ninongering ji, we'll have to wait and watch. Now the challenge is कि इसे जल्द से जल्द सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को बनाया जाए, लेकिन अगर प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में 2-3 साल लग जाता है तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कितना टाइम लगेगा हम एक अनुमान कर सकते हैं। विल गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, आफ्टर दैट आई विल कम टू मिस्टर टागोरी मिजी एंड डॉक्टर सुरन सिंह वंस अगेन टू टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। वेलकम बैक। फाइनली मुझको लाइन मिला है टू मिस्टर टागोरी मेजी, द एडवोकेट एंड लीगल एडवाइजर ऑफ द सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम। नाउ टागोरी मेजी जी, इतना दिन हम सुनते आए हैं कि चाइना ने ये सबसे बड़ा डैम, विश्व की सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन 2-3 दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि काम शुरू हो गया है। इन्होंने एक डेडलाइन भी सेट कर लिया है 2030 तक ये सबसे बड़ा डैम जो है ये बन जाएगा। ये 15 लाख करोड़ रुपीस, इंडियन रुपीस का एस्टिमेट वैल्यू का ये प्रोजेक्ट होगा। नाउ भारत की साइड में हम लोग क्या कर रहा है, हम लोग डेमोक्रेसी है, लोगों का बात सुनना पड़ेगा, वो हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन आप क्या ये नहीं मानते हैं कि आप समय आ गया है कि इस इशू को नेशनल इंटरेस्ट का रूप से देखें और हम लोग सरकार या इंजीनियर्स या टेक्नोक्रेट्स का ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए हम लोगों का? आपका क्या राय है? देखिए, ये सियांग इंडिजिनस फार्मर का स्टैंड ये है कि अभी जो हाल ही में जो चाइना का वो कंस्ट्रक्शन के लिए अभी पेपर में भी देखा है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का वजह से है। अभी जो जितना भी लेट हो रहा है, कुछ भी हो, लेट भी हो रहा है, डिले भी हो रहा है, ये लोग का गवर्नमेंट का वजह से है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम का स्टैंड तो हम लोग नो देम नो पीपर, नो देम, हम लोग का क्लियर स्टैंड है। क्योंकि हम लोग, हमारा यहाँ का सब कुछ लेवलीहुड सब कुछ डिपेंड हो रहा है। सो उस इतना लंबा बोलने का भी ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेन बात ये है कि अभी तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल बस्ती लेवल में जो स्टेक होल्डर इसमें ग्रास रूट तक पहुँचा नहीं है, जिन लोगों को बेच रहे हैं, ये लोग मिसगाइड हो रहे हैं, गवर्नमेंट को भी मिसगाइड हो रहा है और यहाँ का बस्ती वालों को मिसगाइड हो रहे हैं। तो क्यों अभी जैसे हाल ही में रीगा जो क्या बोलते हैं जी, हाँ, नो अभी जी, बोलिए। 2 गांव जो है, 2 गांव ने ऑलरेडी MOU साइन कर दिया है और थोड़ा देर पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमारा शो में थे, उनका कहना है कि 2 और गांव MOU साइन करेगा अगले दिन में। तो आस्ते आस्ते अवेयरनेस हो रहा है, धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है लोगों को, वो साइन कर रहा है। अच्छा, देखिए, साइन लेना, किसी का कंसेंट को रिटर्न फॉर्म में लाना, वो अच्छा बात है। कौन
देम को स्वागत करते हैं, कौन नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छा बात है, डेमोक्रेसी में वही प्रोसीड्यूर है। लेकिन जिस तरह से ये सिग्नेचर को ले रहा है, कंसेंट को ले रहा है बस्ती लेवल में, ये जब बस्ती लेवल में आप लोग मीडिया वाले लोग और यहाँ का गवर्नमेंट लोग भी जाके देखिए, सुनिए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, रीगा में जो सिग्नेचर MOU जे हुआ है, अभी सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, इसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट का भी मिसलीड हो रहा है, सीधा से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी मिसलीड हो रहा है। तो मीजी जी, क्योंकि एक ही घर से 4-5 आदमी कैसे सिग्नेचर करेगा? मीजी जी, आपका ये SUMP, इसके बाद 3 आदमी चाहे सिग्नेचर करेगा तो 3 घर गिनेगा। तो मीजी जी, आपका मेन आपत्ति क्या है? क्या आपका ये डर क्या प्रोसीड्यूर है क्या? आपका मेन आपत्ति क्या है? व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्शन इस SUMP डैम को लेकर के? आपका मेन ऑब्जेक्शन क्या है? मेन आपत्ति क्या है? मेन ऑब्जेक्शन ये है कि मैं शुरू से लेके मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल जो स्टेक होल्डर, उसको बस्ती लेवल में जाइए, झूठ मत बोलिए, सच्चाई का बताइए, ईमानदार से बताइए, नियत साफ होके बताइए, डैम क्या है, डैम का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, बस्ती लेवल में जाइए, समझाइए। वो करता नहीं है। यहाँ में 1-2 आदमी लोग को बुला के, टेलीफोन से बुला के यहाँ में MOU करने देते हैं। अभी जैसे रीगा में हो रहा है, रीगा का तो हुआ है बोल के जो दुनिया सोशल मीडिया से देख रहे हैं, वो लोग मान रहे हैं, हम लोग तो मान ही नहीं रहे। क्यों मानेगा? क्योंकि रीगा का अथॉरिटी हुम्बुरंग बोल के एक अथॉरिटी है, जो कम्युनिटी का विलेज काउंसिल है, अथॉरिटी है, उससे कुछ लेन देन नहीं है। वहाँ का ZPM लीड किया है, ZPM लोग कभी बस्ती में अवेयरनेस मीटिंग को कंडक्ट किया ही नहीं है। वो कब सिग्नेचर कब लिया है, किसको लिया है, कोई पता नहीं चल रहा। आपस में जो पड़ोसी भी पता नहीं चल रहे, सब सोशल मीडिया में वायरल हो तब से पता हो रहा है। क्या यही तरीका है क्या? ओके, नाउ ये कम्युनिटी जनरल का बात को तो कम्युनिटी में बात करके डिसाइड करने दीजिए। मीजी जी, आपका पॉइंट आपने पॉइंट रखा है, तो मैं ओजिंग टासिंग जी के पास जाऊंगा बिफोर कमिंग टू डॉक्टर स्वर्ण सिंह। मिस्टर ओजिंग टासिंग, आपने सुना एडवोकेट तागोरी मीजी का कहना है कि अवेयरनेस नहीं हो रहा है, जिला परिषद मेंबर्स लोग टेलीफोन में बात कर रहा है, गांव-गांव में नहीं जा रहा है एक्चुअली, एंड सिग्नेचर्स आर टेकन अ फ्यू पीपल। ये इनका एलिगेशन ये है, तो आपका क्या कहना है, इसको कैसे सुलझाया जाए? हाउ टू, ये डेडलॉक जो हो रहा है अभी, हाउ टू ब्रेक दिस डेडलॉक? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि ये बात जहाँ तक एंटी डैम का लोग बोल रहा है और जो SIFF का स्पोक्स पर्सन या लीगल एडवाइज़र बोल रहा है, उनका बात में कोई तथ्य नहीं, क्योंकि वो वहाँ रहता नहीं, वो ईटानगर में रह के बात करता है, मैं कैपिटल में वो रह के बात करता है, हम वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में रह के बात करता है। तो फ़र्क तो होगा बॉटम लेवल पे। और जो आदमी को मानना नहीं, कुछ भी चीज़ मानना नहीं, वो तो कभी मानेंगे नहीं। उनके बात पे तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और DCM साहब ने जो टारगेट सेट करने को बोला है, उन्होंने मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मैं अमल में लाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक घर से 4-5 लोग साइन कर रहा है और वो उसको ये 4-5 घर बोल रहा है, वो गलत है। 1-2 हो सकता है, बट देन मोर देन 300 हाउस होल्ड साइन ऐसे नहीं करता है। और अनलेस उसका अवेयरनेस दिए बिना हम कैसे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमको वहाँ जन्मना है, हमको वहाँ रहना है और हमको वहाँ मरना है। तो हमको तो लोगों के साथ बैठ के, पॉलिटिक्स तो एक कहा जाने से तो ये तो एक बहुत ही टेम्पोररी चीज़ है। हमको उनके साथ रहना, उनके गांव वालों के साथ जाकर रहना अंत में। तो उसके बारे में अगर वो ये सब बात करता है तो ये गलत बात है, क्योंकि और उनको भी जाके अपने गांव में जाके बात करना चाहिए। आप ईटानगर में बैठ के ये बात करें कि हम नहीं मानता है, बोलने से तो नहीं होगा। आई डोंट से दैट कि ऑल द पीपल ऑफ द विलेज हैव साइन, बट आउट ऑफ 405 329 हैज साइन, एंड मोर देन 60 or 70 हाउस होल्ड। Okay. Okay, we have lost that connection Hello. to Ojing Tasing. More than 80%.
We will come back to Let's- we'll come back to Ojingta Singh. We'll come back to Ojingta Singh. Miji ji, आपका पास मैं दोबारा आऊँगा. Let me take a broader picture once again from Dr. Swaran Singh. Dr. Swaran Singh, let's play that little bite of there are two chief ministers while Pema Khandu, the Chief Minister of Arunachal Pradesh, describes it as an existential threat if the dam is constructed by the Chinese, that it is going to overwhelm the people, overwhelm the situation. Chinese will be able to either flood the region or lead to a drought by closing the water supply. The Assam Chief Minister is saying that there is nothing much to worry at the moment. Government of India is looking into the matter, and his contention is that 70% of the Brahmaputra's rivers do not originate in the Tibetan plateau. That it's a rain-fed river, and statistics are showing that Tibet's annual rainfall is sparse at 300 mm annually, whereas Northeast India gets 2,300 mm of rainfall annually. So there are divergent opinions. Have you ever applied your mind to this? And the Chinese seems to have already set a deadline of 2030, and here we are talking about conducting the pre-feasibility report with government struggling to get the villagers of these 12 villages come to a agreeable point. I think you have already said this. The speed of delivering on mega projects is different when it comes to China and India. You have underlined that India being a democracy, and we all heard Deputy CM of Arunachal Pradesh sharing with us that they are trying to create attractive packages and have a piecemeal negotiations with the people village after village to get each family's signatures. And we have a different process of how we will move forward. So there is no doubt, first of all, speed of building mega projects in India and China is definitely different. What can be done is, I think, this issue of transparency, that all the stakeholders, including the people who are going to be impacted upon by sort of displacement during the project on Siang River on Indian side, will have to be taken into confidence, and that is going to take some certain amount of time. There is no doubt about it. Meanwhile, I think India should also work at different levels, working with Bangladesh, working with China as to how we can ensure that the fear that the Arunachal Chief Minister underlines in terms of existential threat of China being able to weaponize these dams and either make Indian rivers dry or sort of flood them during monsoon time, how that can be addressed. And I mentioned that the MOU signed in June of 2002 has expired, and now it needs to be revived also. But you also mentioned the difference between the assessments of chief ministers of Assam and Arunachal Pradesh. Very clearly, I understand, everyone knows that the major part of precipitation of the rainfall, which brings water to Brahmaputra, happens on Indian side of the border. But Arunachal Pradesh being a frontline state when it comes to China, and perhaps Assam is relatively more resourced also in terms of all kinds of technical capabilities, manpower, resources, and so on, could explain why the assessment is slightly different from one another. But we have to be careful and think of worst case scenarios also. It's not that naturally things are going to get worse, but potentially China can make things difficult for India, and India must prepare for those situations. Yeah. And I think we should have woken up way back in 2020 when this mega project was approved as part of 14th five-year plan of China. And maybe we took certain amount of time to wake up and start responding. We definitely need to respond, keeping in mind that this kind of huge mega projects can be weaponized potentially. Right. And we need to build our own dams to make sure that if there is a flooding, we can control that flooding, or if there is a drought. Absolutely. For example, we should also be able to deal with that. So absolutely, we are waking up, but maybe we are waking up slightly late. In responding to it.
Right. For example, the Siang Upper Multipurpose Project that is has a capacity of producing will have a capacity of producing 11,000 megawatt that can also store. It will have a capacity to store 9 billion cubic meters of water. So these are the projects that may come in handy in the event of a crisis. Now, तागोरी मीजी जी, मैं आपका लिए मेरा एक डायरेक्ट सवाल है. तो आप कह रहे हैं कि सरकार का लोग जो है वो गांव में नहीं जा रहा है, अवेयरनेस नहीं कर रहा है. क्या आप सियांग इंडिजिनस पीपल्स फोरम, क्या आप ये एग्री करेंगे कि जॉइंट डेलीगेशन, आपका डेलीगेशन, सरकार का डेलीगेशन जॉइंटली जा करके ग्राउंड में गांव वालों के साथ बात करे? ये क्या आप एग्रीएबल होंगे? विल यू एग्री टू दिस? देखिए, मैं उसी के लिए सीधा जवाब पहले भी दीजिए. बोल रहा हूँ. प्लीज गिव ए डायरेक्ट आंसर. चर्चे को जी उस if they want to come, we have always welcomed them. The experts should come to the village and they should tell what exactly them and what is the merit and demerits of them. So the people should be educated. The stakeholders should be taken in confidence. So without taking in the confidence to the stakeholders, never वो कभी आगे होने वाला नहीं है. So is MOU जो कुछ भी हो, कुछ आगे होने वाला नहीं है. No, my question is, yes, that is a good point. But my question is, Mr. Mizi, will the Siang Indigenous Farmers Forum be willing to go in a joint delegation with the government of Arunachal Pradesh to all these affected villages? आप क्या agreeable होंगे? हाँ, उसमें मैं अगर ऐसा प्रपोजल आता है तो मैं अपना एग्जीक्यूटिव लोग के साथ बात करेंगे. Okay, let me go to Mr. Ojing Tasing ji. Mr. Ojing Tasing, you have heard Tagore Mizi is saying that if there is a formal proposal inviting the anti-dam groups like the Siang Indigenous Farmers Forum to go in a joint delegation with the officers and political leaders of the government, एक formal proposal आता है तो they can discuss in their executive meeting. हाँ, देखिए, you see, इसमें ऐसे कि पहले से we have been in talk with this SIFF कि इस बात में हम बार बार उनसे जिक्र कर रहे, डिस्कस कर, टॉक कर रहे हैं. उनको वो जिसका सबूत आपके पास भी होंगे, लेकिन वो हर बार यही बोलता है कि नो डैम ऑन सियांग, नो FEFR. तो वो बात जब बोलता है तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ फर्दर टॉक. ऐसे बात है इसमें एक्चुअली. एंड मैं तो उन सब से बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, बार बार हम आपसे टॉक करेंगे जब तक हम रास्ता नहीं निकलते हैं. अब टॉक करेगा, हम रेडी है. साइड बाय साइड हम उनके इंतजार में बैठ नहीं सकते कि चुपचाप, और हम अपना काम कर रहे हैं, डीसी लेवल से काम कर रहे हैं. एंड वी हैव बीन तासिंग जी, अभी आप बात पहले भी किया है, अभी भी आप कह रहे हैं कि बात करेंगे, लेकिन अब ग्राउंड में क्यों नहीं जाता है? व्हाई डोंट यू गिव ए फॉर्मल प्रपोजल टू SIFF दैट कम इन ए डेलीगेशन, हम लोग वी विल डिस्कस ऑन द ग्राउंड, टॉक टू द पीपल, ट्रांसपेरेंट. जैसे कि डॉक्टर स्वरण सिंह जो कि भारत के एक टॉप रैंकिंग चाइना एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. तो आप ये फॉर्मल प्रपोजल क्यों नहीं दे सकते हैं? नहीं, आप सुनिए, ऐसे नहीं कि फॉर्मल प्रपोजल नहीं गया है. पहले इसके ऊपर 2 बार कंसल्टेटिव मीटिंग हो चुका है, one at Riu and one at Yingkiong. So in that board meeting I was present there, and even this anti-dam people were there, anti-dam activists were there. We have the thorough discussion and we try to convince the people. Whatever I have made point on that meeting, it was known to all. It is not hidden there, no. Even in Yingkiong, wherein the people, anti-dam people shouted, there also I met my eastern clear, the eastern of the government of Arunachal Pradesh and the government of India's eastern clear there. And what is going to be come up and what is going to be happen, so we should sit in the table and discuss, so that for the welfare of for the well-being of our common people. Not that for the sake of your opposition, you go on opposing the issues, it will of no use, no. You should have to have a thing for the interest of the people. आप लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोच ही नहीं रहा, आप अपने पॉइंट को सिर्फ रख रहे हैं.
and how many how many leaders gave their resignation due to their क्या बोलते हैं उसको स्टार बॉन्ड के कारण. कितना two presidents, one general secretary has already resigned from their their organization because of the non-cooperation of the leaders and their activists. तो ये है बात. ग्राउंड लेवल पे आपका कुछ अलग है, हम मीडिया पे अलग बोलेंगे वो तो नहीं हो सकता. एंड इवन यू सी, आप बोलता है कि पीसफुल धरना, पीसफुल प्रोटेस्ट, तो ये मीडिया में आके ये बोलते हैं यू हैव दैट एविडेंस कि उसको हैंगिंग ब्रिज को आग जलाया गया, मशीन को तोड़ा गया. इज दैट ए पीसफुल प्रोटेस्ट? आज के तारीख में वो सब चीज़ को कोई भी इनकरेज नहीं करता है. तो और ये चीज़ को हमको देखना है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और कौन किस रास्ते पे जा रहा है. देखो, आई एम ए गवर्नमेंट और हम एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, और अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी, ये एक ऐसा गवर्नमेंट है हमेशा पीपल फर्स्ट देखते हैं, अपना जनहित को पहले देखते हैं. तो हम तो ये नहीं करेंगे कि पूरा वहाँ सहमत है, लेकिन ये जो सहमति नहीं दे रहा है इसका अपना एक पॉलिटिकल एंगल भी है. ओके, मीजी जी आपका क्या कहना है? आप कुछ कहना चाहता है? यस, बोलिए. मैं ऑनरेबल जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा. अच्छा ऑनरेबल जी, आप बताइए, आप तो बोल रहे हैं कि 2 बार मीटिंग किया है. यस, one was at Rio, and that was initiated and organized by the Rio Student Union, not by the government of Arunachal, not by your. Number 2, at Yingkiong, yes, that was also initiated by the Upper Siang Student Union, if I'm not wrong. तो बुलाए, आप आ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन आप बताइए, आप रीगा का है, मैं खुद भी रीगा का हूँ. दो आई एम रिप्रेजेंटिंग शिप नाउ इन कैपेसिटी ऑफ स्पोक पर्सन. फिजिकली पर्सनल आई एम फ्रॉम बिलोंग टू सेम प्लेस रीगा. आप बताइए, रीगा में आप कितना बार आप ऑर्गेनाइज किया है ये डैम के लिए? आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में पारोंग में कब किया है, रियो में कब किया है, आपका तरफ से चितंग में कब किया है, पंकंग में कब किया है, आप फिजिकली कब किया है? Very quick response by Mr. Tasing, and then I will go to Ninong. Very quick response by the minister, then I'll go to Ninong Ring and Dr. Swaran Singh for a broad picture. Yeah, मंत्री जी बोलिए. सबसे पहले तो देखिए, अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो ऑल यू स्टेट्स यूनियन ऑर्गेनाइज किया था वो हमने बोल के ऑर्गेनाइज करा है, बिकॉज हम बोलने से वो नहीं आएंगे. तो इसलिए मैं एक न्यूट्रल पार्टी को, एक स्टेट यूनियन को चॉइस किया और उनको ये करने के लिए बोला. इवन आप इंक्यों का जो कंसल्टेटिव मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था वो भी स्टेट यूनियन को हम लोगों ने किया, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो वो नहीं आएंगे. ये एक रीजन था कि हमने उनको अपर सियांग स्टूडेंट्स यूनियन को बोल के गवर्नमेंट का मीडियम से बोल के उनको ऑर्गेनाइज कराया है. उसको जो नेगोशिएट किया है उसका नाम भी मैं बता सकता हूँ कौन इसको नेगोशिएट किया है कि इस प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए. तो आधा अधूरी कहानी को जान के बोलना तो ये गलत बात होगा, क्योंकि हम उसको जानते हैं. और रीगा में कैसे नहीं गया? रीगा में SUMPDC का चेयरमैन गया, DC गया, पारोंग में DC गया, आपका बेगिंग में DC गया, कहाँ नहीं गया? हर जगह तो मिनिस्टर जब पहुँचने वो जरूरी नहीं ना. ये गलत बात है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि एक एक्टिविस्ट और एक मिनिस्टर का डिफरेंस होता है. नॉट डेट कि स्क्रीन का सामने आ गया कुछ बोल दे, ऐसे नहीं होता. Okay, we'll go for a very quick break. Then I'll come back for our last segment and go to Ninong Eringji and Dr. Swaran Singh. Don't go away.
Ninong Ering ji, how to break the deadlock? आपका क्या सजेशन है? Let us be specific to the point because ज़्यादा समय नहीं है. How to break the deadlock? आप डेडलॉक को तो ब्रेक कर चुका है वजीर जी, आपका तजुर्बा बहुत है. आज जैसे हमारे जो प्रवक्ता है ये सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम के, उन्होंने कहा कि हम एक साथ काम करेंगे. अगर हम साथ में बस्ती बस्ती जाएंगे तो वी कैन ब्रेक द डेडलॉक. और सिंह साहब जैसे कहा कि बेटर लेट देन नेवर, तो अभी कम से कम शुरुआत हुई है. आपका माध्यम से ओजिंग तासिंग भी सुन रहे हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भी शायद देख रहे होंगे और हमारे उप मुख्यमंत्री जो हमारे यहाँ के पन बिजली के मंत्री है, तो शायद इट इज अ गुड बिगिनिंग. आई थिंक वी शुड ऑल वर्क टुगेदर एंड बिकॉज इट इज अ नेशंस इशू, और व्हेन वी से नेशन फर्स्ट, so let us take the national security into confidence further, then start the work. I'm sure Ojing Tasing and this thing, Tagori will, my younger brother Tagori will make a breakthrough through your channel. We have had a very good meeting today. I'm sure that we'll understand each other better. Thank you. Okay, that is interesting, and if because बातचीत तो हो चुका है, talks have held between SIFF and the government, but now the question is whether the government is once again ready to give a proposal asking the SIFF to accompany some of the representatives to the ground, talk to the people, and as Dr. Swaran Singh has said, transparency in this kind of a situation matters a lot. Let me hear from Dr. Swaran Singh. Dr. Swaran Singh, China has shown to the world that it can really implement whatever it decides to go ahead, because unlike us, as we have said right at the beginning, you also underlined the fact we are a democracy. We have to listen to every small voice, every big voice, small voice, that doesn't matter. We have to listen to the people's voice, but China doesn't have to do that. So that gives China a huge edge, isn't it? And as far as the finances are concerned, a lot of people are raising questions that the amount of money that the Chinese are going to spend in this project may not be at the end of the day worth it. That's also why people are raising this question. Clearly, China is a different country, and it is a much larger economy. It has a very different politics. So I don't think India should try to become China, or can become, or would like to become China. India has to look at its own advantages. And I heard the Deputy CM underlining that they are trying to create attractive packages. They are trying to talk to people from village to village, family to family. And I think that is very significant, because this is a challenge which is a long haul challenge. China is going to harness Tibet, which is the water tank on the planet, and it is going to use multiple things from hydropower projects to cloud seeding to diversion of water through tunnels and all. This challenge is going to continue for a long period of time, and therefore it's important that we take all the stakeholders along, and I think each government will have its own strategy how to ensure that credibility is built and everyone is taken along, which is how Prime Minister says, Sabka Saath. So in that sense, because it is a long haul, we have to explain to our citizens that we need also to build certain amount of projects to deal with those worst case scenarios where, the fragile ecology could impact us, China's weaponization could impact us, biodiversity's negative impact could impact India, and livelihood of these people will be impacted first. People who are sitting far away will not be impacted, like I'm sitting in New Delhi. So these people who are going to be impacted both by building projects on Indian side, as also by not building projects, and by what China can do damage in terms of their livelihoods by weaponizing water from their side. Absolutely. People on the ground will have to be explained, and they must understand that India also needs to build certain amount of infrastructure to deal with those dangerous possibilities of what CM of Arunachal Pradesh says existential threat to India, or at least the border regions. Some more effort. And therefore, I think it has to be long haul strategy, because it is going to continue for a longer period of time, and we have to respond piecemeal every time new challenge arises for us. Absolutely. A long haul, this is going to be a long haul issue, and people need to be explained a little bit more thoroughly perhaps. Last comment from you before I give the platform to this Ojing Tasing ji to conclude. Tagore Miji ji, finally आप क्या कहेंगे? Tagore Miji ji, short, very short. मैं एक क्लियर क्वेश्चन देना चाहूँगा. जो एडवाइजर जो निनोंग इरिंग सर जी ने जो बोला है,
उसके बारे में एक्चुअली मैं यही बोल रहा हूँ कि आप बस्ती बस्ती में जाने के लिए वो जॉइंट गवर्नमेंट के साथ प्रपोजल आता है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि चलो ऐसे प्रपोजल आता है तो विल डिस्कस क्या हो सकता है, इसके बाद हम लोग गवर्नमेंट को बता देंगे। जी हम कमिटमेंट नहीं दे रहा है कि आप लोग प्रपोजल आएगा तो कर देगा, जाएगा साथ में जाएगा, ये हम प्रपोजल नहीं दे रहे, हम कमिटमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन जब प्रपोजल टागोरी होगा मिजी जी, आएगा, हम लोग this is a positive. बैठ के बात करेंगे, इसके बाद No, गवर्नमेंट को बता देंगे। मिजी जी, I look at it positively. आपने बोला कि ये प्रपोजल आता है तो हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। आप यहाँ एक टेलीविजन शो में तो आप बता नहीं सकते हैं, हम लोग भी समझता है। अगर प्रपोजल आएगा तो आप डिस्कस करेंगे, यही पॉजिटिव है। फाइनली मिस्टर ओजिंग तासिंग, व्हाट आर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स? वेरी ब्रीफ, आई एम एब्सोल्युटली नो टाइम नाउ। तो मेरा अपना एक ये की सोच है कि और कि जब चाइना में ये डैम शुरू हो गया तो एज ए इंडियन हमको अरुणाचली होने का नाते और एज एन इंडियन हमको ये सोचना चाहिए कि हमको भी अपना देश हित में कि एक ऐसे दाम बनाए जो हम चाइना को काउंटर करें। इसके लिए मैं SIF को जो शिप को उनको मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप तोक पे आइए, हम सब मिल के अब गाँव में चलेंगे, क्योंकि हम ये बात तो बार बार उनको करता रहता हूँ। अभी से नहीं, जब मैं मंत्री नहीं था उससे पहले से लेके उनका प्रेसिडेंट के साथ काफ़ी बार वार्तालाप हुआ है। उनका प्रेसिडेंट भी दो प्रेसिडेंट चेंज हो गया वार्तालाप के बाद भी, और साथ साथ उनका जनरल सेक्रेटरी भी काफ़ी चेंज हो गया। उस समय से लेके आज तक मैं कंटिन्यू टॉक में विश्वास करके टॉक कर रहा हूँ। तो उनको भी समझना चाहिए। और मैं बार बार अंत में इससे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप आए, हम के साथ बात करें और गांव में जाके हम सब मिलके बात करें और अच्छा क्या है इस डैम से और खराब क्या है, हम मिलके करते हैं और इसको डैम कवर देंगे। We are ending this very important debate on a very positive note. That आइए हम लोग एक साथ जा कर के गांव में जा कर के परिस्थिति का विस्तार करें। We'll look at the situation on the ground. Let's go to the ground. That is the positive note on which we'd like to end this discussion tonight. I thank all my esteemed panelists for being on this show and the viewers for watching the program. Good night and goodbye.